Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do weekly analysis. That is the weekly candle analysis from 23rd of October till 27th of October, right? Not the expiry analysis. But before going any further, let us analyze the previous entire week too, as well as what we discussed on Friday too, right? So if you remember what we discussed for Friday कि अगर हम लोग gap down खुले, right? Gap down खुलने के बाद we will see कि first 30 minutes की candle कैसी है, right? Let me just bring back the first 30 minutes का candle. Gap down खुलने के बाद we had said कि only if it is able to break 19480 only then we will go for put का scenario or else we are not. And you may notice आज gap down खुलने के बाद if you see this first 30 minutes का candle, right? If you see this first 30 minutes का candle, look at this first 30 minutes का candle. Let me close all the lines so it is clearly visible. This first 30 minutes का candle had been doji और ये बनने के बाद how many times we discuss this, right? कि doji बनने के बाद जब तक इसका high या low वही 30 minutes की कोई candle closing पे break ना कर दे, we are not having a trading opportunity, right? This I had posted on forum too. An entire day we had been inside this range. Similarly, if you see bank nifty, also for bank nifty we had discussed कि अगर hourly candle ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, राइट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन चल रही है 15th-18th अक्टूबर से, आर्ली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग डे ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन पुट, नहीं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल टू. क्यों? क्योंकि यहां से पंप भी लिया तो वो पंप वापस डंप हो जाएगा. एंड यू में नोटिस ये ग्रीन बनने के बाद again it was dump, ऊपर जाने के बाद again it was closed into this C, it was again closed into shooting star of candle, वापस उसके बाद doji, and this also stayed range bound, right? This was the overall picture of nifty as well as bank nifty, entire day range bound eating premiums. It is always better to not take trades in such scenarios. अगर ऐसे 4-5 दिन भी गए, हफ्ता भी गया, then also it is better not to take any buying trades. Of course if you are selling strangles या फिर short straddle कर रहे हो, then it is very nice thing. But from buyer's perspective, इस range में there is no point in taking any puts or calls as long as you are not taking small points. अगर छोटे छोटे points ले रहे then it is good. But directional you will not get opportunity here, right? This was the overall analysis for the day. Another thing, if you remember, for weekly we had discussed, let me bring back the weekly chart. Just a minute. And nifty as well as bank nifty, right? And nifty as well as bank nifty, if I come back on weekly chart, just a minute. So I'm back on weekly chart. Let me close this lines. Okay, so if you remember, ये निफ्टी में ये जो 25 सितंबर की वीकली डोजी बनी है, राइट, हर फ्राइडे को वी हैड डिस्कस कि इस डोजी के अंदर ही मोस्टली हमें कुछ दिनों की क्लोजिंग मिल सकती है, राइट? फॉरगेट दिस इफ यू सी रेस्ट ऑफ द वीकली कैंडल्स टू. अभी ये कब था? 25 सितंबर. इसके बाद वी हैव कंप्लीटेड 3 वीकली कैंडल्स एंड वी हैड सेड कि इसका लो ब्रेक हो सकता है, हाई भी ब्रेक हो सकता है, पर मोस्टली डेज कैंडल की क्लोजिंग इसी के अंदर मिलेगी. 25 सितंबर के बाद यू कैन नोटिस 2 अक्टूबर की कैंडल, दिस हैज क्लोज्ड इनसाइड दिस वीकली का रेंज, राइट? इसका हाई कहां पे? 19766. इसका लो कहां पे? 19492, राइट? इसी के अंदर हमें क्लोजिंग मिली 19653. वापस ये कैंडल की क्लोजिंग कहां पे? 19751. अगेन इनसाइड दिस कैंडल का रेंज. फॉरगेट दिस, इवन चेक दिस करंट वीकली. ये करंट वीकली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग देखना. इसकी क्लोजिंग कहां पे? 19542. अगेन इनसाइड दिस वीकली. यानी सिंस पास्ट 4 वीक्स वी हैव स्टेड रेंज बाउंड, राइट? बैंक निफ्टी में भी इतना कुछ अच्छा खासा, इतना भी बड़ा और चेंज नहीं मिला है, राइट? अगर बैंक निफ्टी ने ये वीकली का लो भी ब्रेक किया है, फिर भी लो के पास से ज्यादा दूर नहीं. ये लो कहां पे था? 44180, राइट? और आज की क्लोजिंग कहां पे? 43720. यानी सिर्फ 400 पॉइंट्स नीचे एज कंपेयर टू पास्ट 4 वीक्स. बैंक निफ्टी ये जो मूवमेंट है ये तो दिन दिन में देता है, राइट? डे पे मूवमेंट देता है, बट स्टिल वी आर क्लोजर व्हेन वी सी वीक टू वीक बेसिस इटसेल्फ, राइट? So what further? इसके आगे क्या? Another thing is I have also mentioned this sticky notes just in order to cover all the points, ताकि ऐसा नहीं हो कि I am missing some points. So I already discussed this. What I discussed I am deleting. Just a minute. Yes. One more thing that I wanted to mention is if you see Nifty का weekly range, right? If you see Nifty का weekly range, ये previous week का range कहाँ पे था? 19843 का high था और 19480 का low, right? हाई क्या था? ये 9 अक्टूबर की वीकली का. दिस हाई इज एट 19843. इसका लो क्या है? इसका लो इज एट 19480. if I bring back all the lines, right, if I bring back all the lines and if I show you on hourly, let me show it from the chart where I have mentioned all the support and resistance. Let me come back on hourly. Just a minute. I'm bringing back all the lines and resetting this chart view. Okay, so you don't need to be confused saying this support and resistance, or I'll just close this. Yes. So what I was saying is कि जो previous weekly है, जो previous weekly candle जो हमने यहाँ से देखी, यहाँ पे जो हमने previous weekly candle देखी है, right? ये weekly का हाई क्या है? 19843. इस weekly का लो क्या है? 19480, right?
हाई क्या है 843, लो इज 480। एंड यू में नोटिस अगर हम आर्ली कैंडल देखें, राइट, कोई भी आर्ली कैंडल देखें यहाँ पे, कोई भी अर्ली कैंडल, जस्ट नोटिस कि 19843 के ऊपर ये जो करंट वीक था, ये करंट वीक कब से था? दिस करंट वीक वाज फ्रॉम 16th ऑफ अक्टूबर से लेके आज का क्लोजिंग 20th ऑफ अक्टूबर। तो 16th अक्टूबर कहां से? यहां से, राइट। ये करंट वीक 16th ऑफ अक्टूबर से शुरू हुआ है। वी हैव टू चेक की कोई आर्ली कैंडल, ये कोई आर्ली कैंडल वाज एबल टू सस्टेन टू गिव अ प्रॉपर क्लोजिंग, राइट। एंड यू मे नोटिस आर्ली कैंडल जितने जितने बार 19843 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है, यू मे नोटिस कि हाई कहां तक गया है? इट वेंट टू 19848, राइट। इसका हाई कहां पे? 848 पे। इसका हाई कहां पे? 19841 पे, राइट। हाई 848 पे, पर क्लोजिंग कहां पे? क्लोजिंग इज दैट 19841, राइट। क्लोजिंग इज दैट 841। स्टिल उस वीकली की रेंज से 2 पॉइंट नीचे, स्टिल वीकली की रेंज से 2 पॉइंट नीचे। यहाँ पे क्लोजिंग कहां पे? 834। स्टिल वीकली की रेंज से 10-13 पॉइंट नीचे। यहाँ पे हाई क्या है? 849। स्टिल वीकली की रेंज से क्लोजिंग इफ यू सी 821। यानी एक्सेप्ट दिस ट्यूसडे एंड वेंसडे, मतलब ट्यूसडे और वेंसडे के बाद तो हम नीचे आए, पर एक भी आर्ली कैंडल ने, एक भी आर्ली कैंडल ने जो प्रीवियस वीकली का हाई था वो क्या था? 19843, उसके ऊपर एक भी आर्ली कैंडल क्लोज नहीं हुई। उसी तरीके से ये जो प्रीवियस वीकली का लो था, लो, वो लो क्या था? इट वाज 19480। एक भी आर्ली कैंडल ना ही लो क्लोजिंग दे सकी सपोर्ट के नीचे, एक भी आर्ली कैंडल, सॉरी, एक भी आर्ली कैंडल प्रीवियस वीकली हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे सकी, एक भी आर्ली कैंडल प्रीवियस वीकली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी। और पूरा हफ्ता वी वर रेंज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो व्हाट फर्दर, ये जो रेंज अभी बन रही है 19843, राइट, ये 19843, ये जो रेंज यानी कौन सी रेंज? वापस ये जो वीकली रेंज बन रही है 19843 का हाई और 19480 का लो, राइट। 19843 का है, 480 का लो। जो आर्ली कैंडल पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक, राइट, जो आर्ली कैंडल पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक ब्रेक नहीं कर पाई, वही रेंज के अंदर, दैट इज 363 पॉइंट्स का रेंज, राइट, वही रेंज के अंदर हम लोग पूरा वीकली स्पेंड कर रहे हैं, राइट। उसी रेंज के अंदर हम लोग पूरा स्पेंड कर रहे हैं वीक्स। तो इसीलिए इसीलिए अनदर थिंग इज नाउ इफ आई सी any early candle if able to survive above 19850, I can say there is an probability of a good bullish trend, right? There is a probability of good bullish trend, और वही जो 363 पॉइंट्स का पंप था कंसोलिडेशन, वो 19850 के ऊपर आ सकता है, राइट। दैट इज फर्स्ट थिंग क्या? अगर कोई भी अर्ली कैंडल, राइट, अगर कोई भी अर्ली कैंडल ये हाई के ऊपर सस्टेन कर पाए, अगर कोई भी अर्ली कैंडल 19843 की जगह वी विल कंसीडर 19850, राइट, 850 के ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल सस्टेन कर पाए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, देन देयर कैन बी फर्दर 360 पॉइंट्स का पंपिंग, यही कंसोलिडेशन जोन। सिमिलरली अगर कोई अर्ली कैंडल 19480 के नीचे, राइट, 19480 के नीचे अर्ली कैंडल क्लोजिंग दे पाए, देन देयर कैन बी फर्दर डंपिंग, राइट। This is what we are considering for weekly. This is what we are considering for weekly. We will discuss daily also. That is one thing. Another thing that I want to mention is, if we come back on days frame, right? Now if I come back on days frame, let me again reset this chart view. You may notice ki we are not yet breaking this downward trending line, right? We are not yet breaking this downward trending line, and we are coming closer to this 100 SMA ka support, which is at 19400, right? We will discuss bank nifty also, but right now we are closer to this. So iske aage how am I planning Monday to Friday, right? Let us discuss that. Iske aage how am I planning? So now if I come back on 1 hour ka frame, just a minute, from Monday to Friday, right? Now if I come back on 1 hour का frame, और यहाँ से if I close all this line, we may notice कि अभी ये जो पूरा सितंबर का जोन आ रहा है, राइट, 21st of September से लेके 20th of October, almost entire week we have been inside this zone, right? Entire week we have been inside this zone except this 4th October का low, right? Except this 4th October का low, and we have been inside this zone. So इसीलिए अभी मंडे को कुछ भी हो जाए, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सबसे पहले तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, एज लॉन्ग एज वी डू नॉट कम बिलो 19480, राइट, 19480 के नीचे नहीं आते, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। आई विल कीप द एसएल एट टुडेज क्लोजिंग व्हिच इज एट व्हाट 19542, राइट। आई विल कीप द एसएल एट 19542, इसके पास आई विल कीप द एसएल, एंड यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी अगेन एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। अनदर थिंग इफ यू रिमेंबर इज 19400 के पास देयर इज
डे का 100 SMA, राइट, 19400 के पास देयर इज डे का 100 SMA, तो यहाँ से लेके 400 के पास वापस एक पंपिंग आ सकता है, राइट, वापस एक पंपिंग आ सकता है. सो 400 के पास आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बुकिंग आउट एटलीस्ट 70% ऑफ लॉट ऑफ माय पुट, राइट, 70% एंड ओनली कैरी फॉरवर्ड 30. अगर 400 के पास से वो पंप ले और 450 तक आए, स्टिल इट इज फाइन. 450 से वापस 400 ब्रेक करता है, देन आई विल ऐड मोर पुट्स, राइट, अगर 400 ब्रेक कर दे तो. पर 450 के पास आए और उसके ऊपर जाने लग जाए, आई विल एग्जिट कंप्लीटली, राइट, आई विल एग्जिट कंप्लीटली अगर 450 के ऊपर जाए. उसी तरीके से अगर 450 के नीचे भी जाए, देन आई विल स्टे इन दिस पोर्ट. एंड मोर ओवर अगर 400 के नीचे डे की क्लोजिंग मिल जाए, राइट, 400 के नीचे डे की क्लोजिंग मिल जाए, then I will carry forward only 30%. I will carry forward 30% only for further trade, right, for weekly view, for weekly view. अगर कब, अगर 19400 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, क्लोजिंग इसके नीचे अगर नहीं मिलती, then this is only intraday trade, right. अगर कब 480 के नीचे चले जाए, that is flat खुल के या गैप डाउन खुल के from 19542. और कौन सी कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए 19480? कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर दे, राइट, फ्लैट हो या गैप डाउन हो, अगर 15 मिनट्स की कैंडल 19480 ब्रेक कर पाए, देन माय एसएल विल बी एट 19542. एवरी ट्रेड्स आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, राइट, दैट इज 15 मिनट्स की. वापस 15 मिनट्स की कैंडल कैसे, दिस टाइप ऑफ रेड, राइट, दैट वी ऑलवेज डिस्कस इन ईच एंड एवरी वीडियो. ऐसे रेड कैंडल्स के साथ ब्रेक कर दे, उसके पास आके ऐसा हैमर कर दे तो चलेगा क्या, नहीं, तो वापस इसका लो ब्रेक कर दे 15 मिनट्स, राइट, ऐसे रेड्स के साथ, दैट इज फ्लैट या गैप डाउन. अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, 19540 के पास से अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, जो सीधा 19450 के पास हो जाए, अगर बड़ा गैप डाउन इसके पास हो रहा है, तो यहां से आई विल वेट एंड सी की 30 मिनट्स आई विल वेट एंड सी की वापस 19400 तोड़ सकता है क्या. क्यों? क्योंकि 19400 इज अगेन 100 डे का एसएमए. अगर ये 19400 भी बड़े गैप डाउन के बाद 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर निफ्टी इसी के नीचे रहे, 19400 के नीचे रहे, अगेन विद दिस टाइप ऑफ रेड प्राइस एक्शन, राइट, ऐसे रेड कैंडल्स के साथ, ऐसे रेड कैंडल्स के साथ अगर 19400 के नीचे रहे, ओनली देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट. यहां से वापस 50 पॉइंट्स का एसएल एट 19450, यहां से वापस 19400 के पास से 19250 तक के टारगेट के लिए, अगर बड़ा गैप डाउन 19450 के नीचे हो जाए, राइट, और 400 भी ब्रेक करे, इसके पास हो जाए इमीडिएटली नहीं, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स रुकने के बाद अगर 19400 के नीचे विद द सेम रेड कैंडल्स दैट आई एम मार्किंग 30 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट विद 19450 एज एन एसएल फॉर 19250 का टारगेट, राइट, 19250 का. और अगर इसके पास भी अगर वापस क्लोजिंग गैप डाउन के बाद भी अगर क्लोजिंग 19350 के नीचे रहती है, अगेन आई विल बुक 70% एंड ओनली कैरी फॉरवर्ड 30% ऑफ माय पुट. ये क्या हो गया, फ्लैट या गैप डाउन का सिनेरियो. उसी तरीके से अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, राइट, कोई भी गैप अप ओपनिंग हो जाए या फ्लैट खुल के ऊपर भी जाने लग जाए, फ्लैट खुल के ऊपर भी जाने लग जाए, एंड इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू यस्टरडेज क्लोजिंग, राइट, यानी थर्सडे की क्लोजिंग के पास व्हिच वाज क्लोजर टू 19630, 19630 के पास आके अगर 30 मिनट्स पे ऐसा टॉप पे रिवर्सल दे, राइट, ऐसे कैंडल्स टॉप पे दे या ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल बनाए टॉप पे 30 मिनट्स पे, राइट, वी आर डिस्कसिंग फॉर 30 मिनट्स, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल के ऊपर जाए और 19630 के पास है, 30 मिनट्स पे ऐसी रिवर्सल मिले, ओनली देन यहां से आई विल कीप दी एसएल एट 19680, 630 के पास मिले, राइट, 19630 के पास या फिर 19630 650 इस रेंज के पास मिले, 630 से लेके 650 के रेंज के पास मिले, तो एसएल 680 पे होगा. यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी अगेन टिल आज का क्लोजिंग, राइट, अगेन टिल आज का क्लोजिंग, एंड अगेन यहां से एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज इसके पास भी आके लोअर हाइज एंड लोअर लोज कंटिन्यू कर रहा है, देन आई विल स्टे इन दी पुट. सिमिलरली इवन इफ आई सी कि 19850 के ऊपर ही अच्छा बुलिश सिनेरियो है, पर फिर भी इफ यू सी दिस ऑन डेज फ्रेम, राइट, इफ यू सी दिस ऑन डेज फ्रेम, just a minute, if I come back on days frame, अभी कैसा हुआ है, if I bring back all the lines also, right, SMAs, if I bring back all the SMAs also, we have closed below the SMA, right, ये जो SMA है 50 SMA, इसके नीचे अभी हमारे वापस 2 दिन आ गए, राइट, इसके नीचे 2 दिन आ गए, पर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के हम लोग ऊपर है. सो ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जो 15 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी सपोर्ट का काम किया, राइट, इसलिए एक बार यहां से वापस पंप हुआ, इसलिए आज भी इसके ऊपर कंट्रोल किया. इसीलिए आर्ली की फ्रेम पे फ्लैट खुले या गैप अप खुले कुछ भी करके अगर 19680 के ऊपर जाने की स्ट्रेंथ दिखाए, राइट, अगर 19680 के ऊपर अगर कोई 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए, कैसे, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसा इन्वर्टेड हो तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ऐसी हैमर की तरह
ऐसे ये जो पंपिंग का प्राइस एक्शन है राइट, डे पे भी कैंडल्स को कितना ऊपर लेके गया है, ऐसे पंपिंग के साथ 19680 पे अगर मुझे 1 आवर की कैंडल आर्ली क्लोजिंग दे देन आई कैन कंसिडर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का अपॉर्चुनिटी है जो पंपिंग 19800 के पास ला सकती है या फिर वापस 19850 के पास ला सकती है। कब? अगर 19680 के ऊपर आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे विद द ग्रीन साइड मार्क। अगर इसके ऊपर आर्ली जाए, मंडे को जाए या ट्यूसडे को जाए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वीकली राइट, इसके ऊपर अगर आर्ली जा पाए ओनली देन आई विल कीप एसएल एट 19600 यानी 80 पॉइंट्स का एसएल। यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन इंट्राडे कॉल का अपॉर्चुनिटी राइट, इंट्राडे कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर दी 19800 से लेके 850 का टारगेट कंसिडरिंग 19680 के ऊपर जाने पे 600 एज एन एसएल राइट, इंट्राडे कॉल का अपॉर्चुनिटी। कब? अगर 19680 के ऊपर आर्ली क्लोजिंग दे विद द ग्रीन्स दैट आई मार्क राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, नहीं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी अगर इसके ऊपर जाए। नहीं तो वी हैव डिस्कस फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, ऑल दी थ्री सिनेरियोज। आई विल जस्ट रिपीट इट इमीडिएटली कि क्या कि यहाँ पे 19480 के नीचे आई एम इंटरेस्टेड इन का अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग 19540 एज एन एसएल। बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो फिर 19400 के नीचे इट शुड स्पेंड 30 मिनट्स कंसीडरिंग 450 एज एन एसएल फॉर 19250 का टारगेट, दैट इज गैप डाउन या फ्लैट खुले राइट, 480 एंड 400 का टारगेट। उसी तरीके से अपवर्ड पे 19630 पे आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेस क्लोजिंग, और लोअर लोस कंटिन्यू करे तो और नीचे, पर 680 के ऊपर अगर सर्वाइव करे देन पंपिंग का अपॉर्चुनिटी। यू कैन अगेन रिवाइंड एंड सी इट, दैट इज क्लियर कट निफ्टी का सिनेरियो। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? Bank Nifty, if you see, Bank Nifty, if you see on days frame, right? Bank Nifty, if you see on days frame, the video is getting bigger because I'm considering all the weekly, right? इसलिए the video is a little bit bigger, right? So if you see Bank Nifty on weekly, you may notice कि Bank Nifty का अभी it is approaching 200 SMA, right? अभी भी 500 पॉइंट दूर है, but 500 पॉइंट 500 पॉइंट्स का मूवमेंट is not big thing for Bank Nifty if it starts giving bigger movements, right? So आज की जो closing है 43,723, you may notice the big resistance that we used to call is 44,180. Consider राउंड फिगर 44,200 राइट, एक रेजिस्टेंस 44,200 का है, बिगर रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि सितंबर सीरीज राइट, अगस्त से लेके सितंबर से लेके आधा अक्टूबर इसी के ऊपर थे राइट, इसके पास से सपोर्ट लेके सी वी वेंट एट 80h राइट, वी वेंट नॉट 80h एग्जैक्टली बट वी वेंट एट हाई राइट, वी वेंट एट हाई, इसके पास से कितना सपोर्ट लिया है? सो 44,200 बैंक निफ्टी के लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से ये जो 200 एसएमए बैंक निफ्टी अप्रोच कर रहा है विच कम्स एट 43,200 राइट, ये एक सपोर्ट है। 44,200 एक रेजिस्टेंस है, 44,200 एक सपोर्ट है, यानी क्या 1000 पॉइंट्स की रेंज हो गई राइट। लेट मी जस्ट राइट दिस रेंज, क्या रेंज मैंने बोली? एक है 44,200 यानी आई एम स्पीकिंग 180 बट राउंड फिगर 44,200, ये एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। वैसे ये जो 200 एसएमए आ रहा है राइट, ये जो 200 एसएमए आ रहा है ये कहाँ पे आता है? ये आता है 43, ये आता है 43,200 के पास राइट, ये आता है 43,200 के पास। लेट मी रेज दिस, ये आता है 43,200 के पास और ये आता है 44,200 के पास। इसके बीच में बैंक निफ्टी एक 1000 पॉइंट्स की रेंज में राइट, बैंक निफ्टी एक 1000 पॉइंट्स की रेंज में है और आज क्लोजिंग कहाँ पे दी है? 43,700 के पास दिए राइट, 723 आई एम जस्ट सेइंग राउंड फिगर 43,700। सो यहाँ से बैंक निफ्टी 500 पॉइंट यहाँ से भी दूर है, 500 पॉइंट यहाँ से भी दूर है राइट। और डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के पास बैंक निफ्टी ने, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के पास बैंक निफ्टी ने 2 दिन सपोर्ट भी दिया है पर रेजिस्टेंसेस भी है। इसीलिए नाउ कंसीडरिंग दिस 1000 पॉइंट्स की रेंज में है बैंक निफ्टी, इसीलिए यहां से व्हाट द ओनली थिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन बैंक निफ्टी इज if I come back on hourly frames, we are into 1000 points का range and I believe कि अक्टूबर सीरीज खत्म होने को क्या अभी 7 ही दिन रह गए if we exclude Saturday Sunday plus I guess एक हॉलीडे भी होगा दसरा का। So if I exclude see if I come back on hourly का frame, अंडरस्टैंडिंग दैट कि 43,200 पे सपोर्ट है, सो इसीलिए बैंक निफ्टी में अभी क्या आई वुड बी इंटरेस्टेड अगेन इन द रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज ओनली राइट। अभी रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज कैसे बैंक निफ्टी में? जब तक बैंक निफ्टी कोई भी आर्ली का क्लोजिंग 44,200 के ऊपर नहीं देता, आई एम नॉट बुलिश इन बैंक निफ्टी राइट। कोई भी सीई का ट्रेड नहीं जब तक 44,200 के ऊपर नहीं जाता। पर हाँ, पर अगर ये जोन के पास आए राइट, जैसे आज आया पर वापस कैसे रेंज बाउंड हो गया राइट, इसलिए इसके पास आई एम अगेन नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। पर हाँ, किसी भी सिचुएशन पे वापस 300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, 43,400 के पास खुल जाए, 300 के पास खुल जाए राइट, क्योंकि 43,700 से 300 पॉइंट नीचे जाना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर 43,200 के पास गैप डाउन आके खुल जाए राइट, 43,200 के पास यानी 300 तक की रेंज पे, अगर 43,300 की रेंज पे गैप डाउन खुल जाए राइट, इसके पास गैप डाउन खुल जाए और 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर मुझे हैमर दिखे
I will consider SL at 43,200 and यहाँ से I am interested in call का opportunity till today's closing, right? यहाँ से I am interested in call का opportunity कब? अगर 43,300 इसके पास गैप डाउन खुल जाए, इसके ये जोन के पास है 43,200, क्योंकि यहाँ पे एक बार 200 का SMA, इसलिए यहाँ से पंपिंग दे सकता है. दिस इज प्रोबेबिलिटी, 100% ऐसा होगा ऐसा नहीं, राइट? इसलिए अगर 43,200 ब्रेक कर दे, कब? अगर 43,300 के पास खुले, 43,300 के पास खुले और 43,200 अगर ब्रेक कर दे, 43,200 ब्रेक कर दे, देन आई विल एग्जिट इमीडिएटली, राइट? देन आई विल एग्जिट इमीडिएटली. पर गैप डाउन खुले, वी आर डिस्कसिंग स्ट्रिक्टली गैप डाउन, राइट? वी आर नॉट डिस्कसिंग फ्लैट या गैप अप. गैप डाउन खुले 43,300 के पास, इसके पास आके भी अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके भी अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे 43,300 के पास से 200 के पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे हैमर बनाए, ऐसा बुलिश प्राइस एक्शन दे सपोर्ट पे, राइट? अगर बुलिश प्राइस एक्शन दे, ऐसा हैमर दिखाए, राइट? ऐसा प्राइस एक्शन दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दिस क्लोजिंग, एज लॉन्ग एज हायर हाइज आर गोइंग ऑन. उसके पास से स्विंग लो ब्रेक करना है, आई विल एग्जिट. दैट इज कब? गैप डाउन हो जाए तो. उसी तरीके से पर अगर फ्लैट खुल के आए, तो फ्लैट खुल के आए तो वही पुराना हिसाब है कि जब तक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन 1 आवर की कैंडल ब्रेक ना करे, 1 आवर, नो 30 मिनट्स, नो 5 मिनट्स, 50 मिनट्स, अगर 1 आवर की कैंडल ब्रेक कर दे, ओनली कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन डाउनवर्ड का अपॉर्चुनिटी जब तक 43,200 नहीं है. इसके पास भी आके अगर 43,300 तक पंप ना करे और वापस 200 के नीचे ही जाए वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे, आई विल कंटिन्यू. दैट इज फ्लैट का अपॉर्चुनिटी, राइट? दैट इज फ्लैट का अपॉर्चुनिटी. या फिर गैप डाउन खुल के भी इसके पास आर्ली पे अगर कोई भी ऐसा रेड प्राइस एक्शन दे, दिस टाइप ऑफ रेड प्राइस एक्शन अगर आर्ली पे दे, तो दैट इज फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले. उसी तरीके से गैप अप जाए, जितना वापस इस रेजिस्टेंस के पास आए, जितना 44,000 के पास बैंक निफ्टी आएगा, 44,000 से आई एम अगेन इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी. यहाँ से आई विल कंसीडर 180 पॉइंट्स का एसएल. यस, आई विल कीप एसएल बिगर, क्योंकि यहाँ से पॉइंट्स भी अच्छे मिलेंगे. 43,800 तक आ सकता है, ये भी तोड़ के नीचे जाए, देन अगेन इट कैन कम बैक टू दिस जोन विच इज एट 43,600, 500 के पास, राइट? जितना इसके ऊपर जाए, ये बीच वाले जोन पे अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, जो आई एम सेइंग सिंस लास्ट 3 डेज, क्योंकि ये रेंज बाउंड हो सकता है, राइट? दैट इज माय ओवरऑल वीकली सिनेरियो फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, राइट? फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you so much.